السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم لوگ جانے لگے ختم قرآن پہ، میں اور میرے ساتھ ہیں سبحان بھائی، عدنان بھائی۔ السلام علیکم سبحان بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ عدنان بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ السلام علیکم عبداللہ بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ موٹر سائیکل ہمارے پاس ایک ہے اور ہم بندے جو ہیں وہ چار ہیں۔ حذیفہ بھائی جو ہے وہ ہمیں گیڑا کرائی کھڑے ہیں کہ بس میں آیا بس میں آیا، لیکن ہم لوگ جو ہے جگاڑی ہیں اور نکلتے ہیں۔ چلو بھائی جی، چلو بھائی۔ حذیفہ بھائی جو ہے وہ بہت لیٹ ہو چکے تھے، لیکن ہم چار لوگ جو ہیں وہ ایک بائک پہ نکل پڑے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بالکل شارٹ تھا۔ بائک پارک کرنے کے بعد انٹر ہوتا، جیسے ہم لوگ انٹر ہوئے تو دعا ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے سب لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی قرآن پاک کے ختم کی خوشی میں، اور مجمع دیکھیں آپ ماشاءاللہ، بہت مجمع بھی بہت تھا۔ بھائی جان عبداللہ بھائی جو ہے وہ اپنا مشن لگانے میں کامیاب ہو گئے، ایک مشن، اور یہ سبحان بھائی۔ بھائی جان یہ کیا ہے؟ یہ ڈبے چوری کرے ہمیں کچھ نہیں ملا بھائی، آپ کا کدھر ہے جناب؟ آپ اپنے مشن میں، وہ تو آپ کی شادی کی دعا کروا دی ہم نے ادھر، آپ نے ریکارڈ نہیں کری، وہ ہم نے آپ کی کروا دی ہے۔ ٹھیک ہے عدنان بھائی جو ہے وہ قاری صاحب۔ آپ کی شادی کی ہو نہیں جائے گی، آیا نا میرے اور عدنان بھائی کے ملنے کے بعد عبداللہ بھائی جو ہے وہ قاری صاحب سے ملے، رش دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنا تھا۔ اس کے بعد جو ہے حذیفہ بھائی جو آ چکے ہیں کیونکہ دعا ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ حذیفہ بھائی جو ہے وہ آلریڈی لیٹ ہو چکے تھے۔ قاری صاحب کا خلوص اور پیار اتنا تھا کہ ہم لوگ قاری صاحب کو کھانے کا منع ہی نہیں کر سکے۔ اس کے بعد کھانا جو ہے وہ بہت مزیدار بنا ہوا تھا، دیکھیں ماشاءاللہ مجمع بھی بہت تھا، اور یہاں اعتکاف میں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ کھانے میں چکن جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے وہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہم نے قاری صاحب سے الگ سے ٹائم لیا۔ ملتے ہیں قاری صاحب۔ میں نا اس پہ بیان سن رہا تھا صاحب کا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے اپنے بیان میں کہہ رہے تھے ایک آدمی تھا یہودی، ہندو بھی نہیں، کون تھا؟ یہودی۔ کہتے اس کی نا ہندوستان میں اس کی فیکٹری کو لگ گئی آگ، اس کو آ کر انہوں نے بتایا کسی نے بھی، جناب آپ کی فیکٹری کو نا آگ لگ گئی۔ اس نے کہا میری فیکٹری نہیں جل سکتی۔ کیوں؟ دوسرے بندے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، اس نے کہا تیری فیکٹری جل گئی۔ اس نے کہا میری فیکٹری جل سکتی نہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد پھر اطلاع آ گئی بھی جناب نہیں اس کی فیکٹری نہیں جلی۔ اس نے کہا بھی کیوں نہیں جل سکتی تھی، تو اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، اس لیے میری فیکٹری تو جل نہیں سکتی، کسی اور کی جل سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا آس پاس کسی کی جلی ہے لیکن تیری فیکٹری بچ گئی، تو اس لیے سال بعد اکٹھے نہیں دے دیتا ہوں، آپ روز دیا کرو۔ نہیں وہ تو زکوٰۃ ہے نا، صدقہ روز دیا کرنا، ہاں نہیں تو پھر وہ نکل تو جانا ہے، وہ تو دے دیتے ہیں، نکل دے۔ قاری صاحب جو ہے وہ کسی سے ملنے گئے تھے، ہم نے کہا آپ کو مسجد دکھا دیں کتنی پیاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک کسی صحافی کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک یہودی سے پوچھا کہ تم
दुनिया के अंदर बहुत कम तादाद के अंदर हो, लेकिन कामयाबी में सबसे आगे जा रहे हो, उसके बुनियादी उसूल क्या हैं? तो उस यहूदी ने कहा कि हमारे पास जो बुनियादी उसूल हैं वो हैं 3। एक है इल्म का हसूल, एक है तिजारत और एक है भाईचारे का फ़रोग़। उसने कहा क्या मतलब इसका? उसने कहा इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही इल्म के हुसूल पर लगा देते हैं और उसे कहते हैं कब्र तक तूने पढ़ना ही है, सारी ज़िंदगी वो पढ़ता ही रहता है, चाहे बूढ़ा भी हो जाए ना वो तालीम हासिल करता रहता है। और दूसरा उसूल ये है कि हम तिजारत करते हैं, अपने बच्चों को हम तिजारत सिखाते हैं कि सारी ज़िंदगी तिजारत करनी है, अपना बिजनेस करना है, चाहे छोटा सा हो लेकिन अपना बिजनेस करना है, नौकरी नहीं करनी कहीं। अच्छा, तीसरी है कि भाईचारे को फ़रोग़ देना है। उसने कहा पूरी दुनिया में कहीं एक भी यहूदी होगा उसे थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, हम सारे यहूदी एक साथ खड़े होकर उसका साथ देंगे। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि ये बातें तो तीनों तेरे ठीक हैं, इल्म का उसूल भी ठीक है, तिजारत भी ठीक है और भाईचारे का फ़रोग़ भी ठीक है, लेकिन ये तीनों उसूल आप लोगों ने लिए कहाँ से? तो यहूदी ने कहा कि ये तीनों उसूल हमने लिए हैं मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। देखा वो कैसे? उसने कहा वो ऐसे कि आप सल्लल्लाहु का फरमान है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, हम अपने बच्चों को वही सिखाते हैं कि तुमने जहाँ से पैदा माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म ही हासिल करो। उसने कहा दूसरा उसूल है कि आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है, कहीं नौकरी नहीं की। उनकी ज़िंदगी उठाओ, उन्होंने जितना अरसा की तिजारत की, इसलिए हम अपनी औलाद को तिजारत ही सिखाते हैं। और तीसरी चीज़ जो भाईचारे का फ़रोग़ है, उसने कहा ये देखो कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो उन्होंने जो उस वक़्त मिसाक़ जमहूरियत किया, उस वक़्त जो मुसलमानों के साथ मुवाफ़ात और अख़ुवत का अंसार और मुहाजिरीन के साथ किया, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हमने ये तीनों उसूल मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिए हैं। आज हमें हमारे लिए ये सोचने का मकाम है कि यहूदी हमारे नबी की तालीमात से कहाँ पहुँच गए और हम अपने नबी की तालीमात को छोड़कर कहाँ धक्के मारे हैं। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर व फिक्र करें, अपने नबी की बात एक एक बात पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। ये नहीं है कि आज का दौर जैसे चल रहा है हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, ऐसा ना हो। तिजारत भी करें, भाईचारे को फ़रोग़ भी दें, इल्म का हुसूल भी हो। अल्लाह पाक हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सही माने में अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है, हमारी जितने इस माह मुबारक में हम सब ने जो दुआएं मांगी अल्लाह अपने बारगाह के अंदर कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम जितने रात इस वक्त यहाँ बैठे हैं सबकी उम्र में, माल में, रिज़्क़ में, सेहत में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबको हर शरीर के शर से महफूज फरमा दे, हर हासद के हसद से महफूज फरमा दे, हर किस्म की तकलीफ से हमें महफूज फरमा दे। अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका दुआ के बाद हमने कारी साहब से इजाज़त ली और कारी साहब का दिल से शुक्रिया अदा किया कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमें जो है बहुत अपने खलूस से नवाजा। उसके बाद हम लोग अभी बाहर निकले थे कि कारी जमाल अहमद मदनी साहब से हमारी मुलाकात होगी। ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत नाइस पर्सनैलिटी है, नॉलेज भी इनके पास माशाल्लाह बहुत है और इनका खलूस प्यार तो आप लोग देख ही रहे होंगे। इनका भी हमने शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करने के बाद हम लोग निकले। हम लोग आए थे, आपको पता है, एक मदरसे में जहाँ जो है तरावी का ख़त्म हुआ था, जहाँ कुरान पाक का ख़त्म हुआ था, ये वो मदरसा है। ये सुभान भाई, अदनान भाई, मदरसे का क्या नाम है? अल-कुरैश, जामे मस्जिद अल-कुरैश। जामे मस्जिद अल-कुरैश। ये अब्दुल्ला भाई हैं, लंगर भी इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने अदनान भाई से रिक्वेस्ट की हमें चाय भी। जैसे आपको पता है कि आज अदनान भाई के साथ हम लोग गए थे, तरावी ख़त्म करवाया था, मिलने का भी दिल करेगा। आपने माशाल्लाह सुना भी होगा उनके बारे में। अदनान साहब के तो साथ रहे हैं। अदनान भाई माशाल्लाह प्रोटोकॉल मिला आपकी वजह से, कैसा क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह कारी मुस्लिम साहब जो है ना इलाके की एक मज़ीद शख्सियत और वो जो है कोई भी बंदा उनसे मिलने जाए तो वो उनका अच्छा प्रोटोकॉल से करना और किसी भी टाइम आप उनको आप कोई मसला
माशाल्लाह। ये अदनान साहब मैंने उनके शागिर्द में हिफ्ज़ भी किया है। अदनान भाई माशाल्लाह मसला भी पढ़ाते रहे हैं, तरावी वगैरह अदनान भाई पढ़ाते रहे हैं माशाल्लाह से। मेरे छोटे भाई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। आज तरावियाँ पढ़ने आपको जैसे भी बताया, हम लोगों ने अदनान भाई के भी उस्ताद थे, सुभान भाई के भी उस्ताद थे, उज़ैफ़ा भाई के भी उस्ताद थे, कारी मुस्लिम साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत थी माशाल्लाह। हमें तो बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। तो अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जी जनाब माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत इल्म में इजाफ़ा भी हुआ माशाल्लाह। बहुत नेक इंसान है और बस जो उन्होंने हमें प्रोटोकॉल इज़्ज़त दी उनका हम शुक्रगुज़ार हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और सामा भाई की भी मेहरबानियाँ जो इन्हें ये हमें साथ लेके गए अपने, इनकी मेहरबानी, इनका शुक्रिया। मिठाई के बॉक्स भी माशाल्लाह कारी साहब ने दिए थे और उसके बाद जो हम लोगों ने चाय भी पिया माशाल्लाह। अदनान भाई का बहुत शुक्रिया, इनकी वजह से हमें प्रोटोकॉल भी मिला। सुभान भाई के भी उस्ताद से इनसे पूछते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस था, ये क्या कहना चाहेंगे, कोई एक बात हमसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई। सुभान भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी कारी साहब माशाल्लाह कुछ बता रहे थे आप क्या। जैसे कि आपको भी पता होगा, हमने आपको भी मिलवाया उनसे, तो कैसा फील हुआ? हमें तो बहुत माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा फील हुआ माशाल्लाह जी। वैसे उन्होंने हमारे हमें बहुत जी, आपको बिल्कुल पता बिल्कुल जैसे माशाल्लाह। वैसे तो हमारे माशाल्लाह मैंने जिनसे कुरान पाक पढ़ा वो थे कारी आसिफ साहब माशाल्लाह। वो भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, वो भी बहुत अच्छी शख्सियत है। और कारी मुस्लिम साहब भी माशाल्लाह। सुभान भाई ने तो कारी आसिफ साहब से भी पढ़ा है, कारी मुस्लिम साहब से भी पढ़ा है, लेकिन सुभान भाई जो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, ये भी माशाल्लाह हमसे कुरान। जज़ाकल्लाह सुभान भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतना टाइम दिया, कीमती टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो।